of wave or a particle or else it is known as amplitude. K is known as, लिखते जाते हैं हम सब कुछ, ये सब कुछ करवा दिया था ना लास्ट क्लास में, तो सिर्फ रिवाइज करके फिर नया टॉपिक शुरू कर देते हैं. A is known as, ओ भाई A पूछना है. K is known as angular wave constant number. उसका यूनिट, इसका यूनिट आ जाता है मीटर, इसका यूनिट आ जाता है रेडियन पर मीटर, बिकॉज K is given as 2 pi by, ओए अल्फा नहीं लैम्डा, गप्पेबाज. स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ नहीं, स्टैच्यू. X is known as position of particle. ठीक है. Omega is known as angular frequency, which is represented by omega equals to 2 pi f. यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड और 2 pi by t टाइम, और 5 हो जाएगा इनिशियल फेज. इसका नाम है इनिशियल फेज बोला या उसे इपॉक के इपॉच जो आपको बुलाना है, इसका दूसरा नाम है. ठीक है. ओमेगा नो 2 pi by t पर आवश्यक है, 2 pi by t भी हो जाएगा, 2 pi f भी हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस चलेंगे. या तो आप इसको इस जगह पर ये भी लिख सकते हो 2 pi by कैपिटल T. तो ये हो गया वेव इक्वेशन व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ वेव इज प्रोपोगेटिंग और ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x axis. Similarly, if I write y as function of xt, can I say that is a sin kx plus omega t plus 5. So this represents what? Wave negative is x direction, traveling negative x direction के डायरेक्शन. ये हो गया क्लियर यहाँ तक? इसमें से यहाँ तक इनिशियल पार्ट में कुछ भी डाउट है तो पूछो. हाँ जी बोलो. हाँ बोलो સર આજે y છે તો x, t લખ્યું તો મતલબ એ કહેવાય તો મતલબ એક પ્લેન માં આવે તો પછી વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ના થઈ જાય? ભાઈ આ y અને બ્રેકેટમાં xt છે એ પાર્ટિકલ છે ને, આ વેવ કયા વેવની ઇક્વેશન છે ભાઈ? ये कौन से वेव का इक्वेशन है? प्रोग्रेसिव के स्टेशनरी? प्रोग्रेसिव मतलब वेव के अंदर के पार्टिकल का पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, यस और नो? यस सर. सो वो रिप्रेजेंट करता है ये ब्रैकेट में xt के जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये उसका इक्वेशन है. अभी क्लियर यश भाई? मतलब सर मतलब આપણે x ની વેલ્યુ मतलब પુટ કરીને y t ની વેલ્યુ પુટ કરો. હા જી હા, ન્યુમેરિકલ્સ થશે ને તો એમાં x ની વેલ્યુ આપી હશે, t ની બી ઇક્વેશન વેલ્યુ આપી હશે, અને સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પાર્ટિકલ નું એ ઇન્સ્ટન્ટ એ પોઝિશન પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. ડન? અને સર मतलब એ ફ્રોમ ધ ઓરિજિન વિથ રિસ્પેક્ટ ગણવાનું એમ? એ કેસે ભાઈલા બધું ઓરિજિન થી ગણવાનું, એક્સ્ટ્રીમ થી ગણવાનું, એ પ્રમાણે ફાઇલ લેવાનું, એટલે બધું જ મેન્શન કર્યું હશે ક્વેશ્ચન માં. ડન? સર हाँ भाई बोलो नेक्स्ट पर्सन. 5 માં પ્લસ ઓર માઈનસ થઈ શકે ને? કરશું ન્યુમેરિકલ માં કરીશું, હમણાં નહીં. હા હા સર. न्यूमेरिकल वो मेंशन क्या होगा न्यूमेरिकल में. अभी जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म. डन? अभी ऑनलाइन में सभी भी किसी को डाउट? नो सर. नहीं तो वी टेक न्यू टॉपिक. सर हाँ जी बोलो. हेलो सर. બોલો બોલો સર આ ફોર્મ્યુલા એવી રીતે આવે કે પેલું મેક્સ માં આવે છે ને, બે ફંક્શન નું એડિશન કરે તો પેલું fx + gx એ વાળું એવી રીતે જ આવે ને આ ફોર્મ્યુલા? ફંક્શન ઓફ ફંક્શન એવી રીતે તું કે છે ને? ના સર, પેલું f + g of x = fx + gx એવી રીતે જ આવે ને? f of g અને g of f એ જ ને? હા હા સર એ. ઓકે ઓકે બરાબર, કાઇન્ડ ઓફ એવું. નેક્સ્ટ ટાઇટલ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ ટાઇટલ.
સર ઓમેગા નું જે એસઆઈ યુનિટ છે ને રેડિયન પર એના બસ આપણે ફોર્મ્યુલા પર 2 પાઈ તો સર એને આપણે રેડિયન હર્ટ્ઝ भी કરી શકીએ ને એસઆઈ રેડિયન હર્ટ્ઝ जनरल એવું નથી લખતા ચાલે પણ it will be in second because time period 2 pi by t લખે so that will be in seconds એને કોઈ દિવસ આપણે હર્ટ્ઝ ઇન્વર્સ તો નહીં લખતા ને એટલે जनरली रेडियन पर सेकंड यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है चलिए तो नेक्स्ट टाइटल प्लीज an important title may be asked for 3 mark in the test or exams so give the title સર હું આલવાનું ટાઇટલ કહો હા ભાઈ Yes, first title. Speed of transverse wave on a stretch string. Speed of transverse wave on a stretch. હા બુક કાઢો સાહેબ પેન લઈ લો એક અને લખવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું આજે જ હમણાં જ પેન બી રાખવાની સાથે કાઢ્યું પેન આપો છે બહુ બધી છે એમાંથી એક લઈ ટેસ્ટ પછી भाई अभी इसके लिए सिर्फ मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे लिखना है और अभी सिर्फ टाइटल देखकर आप सबको बोर्ड पर ही फोकस करना है ठीक है पहला बोर्ड पर आई थिंक सो मेरे ख्याल से टाइटल आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और दूसरा टाइटल आ जाएगा दूसरे बोर्ड हाँ स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन अ मीडियम ये स्ट्रिंग के लिए रहेगा मतलब बेसिकली ये ट्रांसवर्स वेव है वो स्ट्रिंग में आपको क्रेस्ट रफ जबकि वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव आपको मिल जाएगा किसमें સાઉન્ડ पर वो कौन से टाइप के वेव्स में मिलेगा आपको साउंड નોન वेव्स हाँ नॉन मैकेनिकल सही बट वेव्स के एग्जांपल्स की बात है भाई समझ में आया यस ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स भाई क्लियर यस सर थैंक यू तो Yes. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ हाँ जी बोलो बोलो क्या डाउट है बोलो સર ફરી રિપીટ કરો ને એકવાર શું રિપીટ કરું સર ભાઈ આપણે બોલ્યા ને પેલું સાઉન્ડ હું બધું જ રિપીટ કરું ડોન્ટ વરી हाँ तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स ट्रांसवर्स वेव कहा है मतलब दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ which waves साउंड वेव्स के लाइट वेव्स Light. स्ट्रेस ट्रफ हमें मिलेगा उसमें हमें स्ट्रेस ट्रफ मिल जाएगा बराबर तो जब भी स्ट्रिंग स्ट्रेच पोजीशन पर होगा मतलब स्ट्रेच पोजीशन इन द सेंस कि स्ट्रिंग को आपने एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से ऊपर उसको अटैच किया है और नीचे रखा है एक ब्लॉक ऑफ मास m तो कहने से ये स्ट्रिंग हो जाएगा स्ट्रेच पोजीशन पर बराबर तो इस मास से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रिंग पर कौन सा फोर्स आ जाएगा टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स आ जाएगा टेंशन बराबर है सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्पीड ऑफ transverse wave depends on two factors. Number one, tension in string, जिसका सिंबल कैपिटल डी. दूसरा
स्ट्रिंग होगा, वायर होगा, वो 1 डायमेंशन में होता है। 1 डायमेंशन में जो मास डेंसिटी आता है उसे कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है लैम्बडा। बराबर, हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। डन इतना। तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए। एक तो टेंशन का डीएफ क्या और स्पीड का डीएफ क्या, कोई बता पाएगा? टेंशन का M1 1 L1 L1 T minus 2. रुको। टेंशन का M1 T minus 2 बराबर है। वेवलेंथ का लीनियर मास M0 L minus 1 T0 लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। M1 L L minus 1 T0. T0. ओए M1 L1 ना आवे गप्पे मार। L minus 1. L minus T0 तो बराबर तो स्ट्रेच स्ट्रिंग होगा, उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स मिलेंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स। व्हिच टू फैक्टर्स? टेंशन इन अ स्ट्रिंग और दूसरा लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, कि स्ट्रिंग। सो कैन आई से स्पीड v is directly proportional to t and is directly proportional to lambda, but we don't know by what proportionality they are depend, so we assume कि a and b powers. So what are a and b? So here A and B are powers of T and lambda respectively. ये बराबर। ये सब कुछ हम करते थे सेकेंड चैप्टर में, डायमेंशनल एनालिसिस। याद आया? yes तो वही हमें आगे सॉल्व करना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में as v is directly proportional to t raised to power a and lambda raised to power b, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करो। सो देयरफॉर v V is equals to T raised k to A t raised lambda to raised to power B. a and lambda raised to power b। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाजी कंपेयरिंग डायमेंशन ओए नहीं, कंपेयरिंग पहले डायमेंशंस तो रखो। डालेंगे, भूल गए आप लोग। पुटिंग द dimensional formula for each quantity। LHS में कौन? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T minus 1 t माइनस k, तो k ही रहेगा। फिर ये है टेंशन M1 L1 t minus 2 raised to power a। लीनियर मास डेंसिटी M1 L minus 1 T0 raised to B रेज टू b। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो m0 L1 t minus 1 equals to k into m raised to a L raised to a t raised to minus 2a into m raised to b L raised to minus b t raised to 0। और एक स्टेप आगे जाते हैं, तो m0 L minus 1 t minus 1 equals to k into m raised to A plus B a plus b L raised to A minus A minus B and t raised to। minus 2A। इसके बाद का स्टेप आप लोग बोलो अभी। A plus B is equal to 0 तो अब करना पड़ता है कंपैरिजन, बराबर है? तो 1/2 रुको minus नेक्स्ट स्टेप कंपेयरिंग द -1/2 डायमेंशंस बोल दिया, यानी ये पावर ही हो गया ना। तो पहले m का पावर, फिर l का पावर और फिर t का पावर। m का पावर LHS में कितना? 0। तो RHS में A plus 0 B इक्वल्स टू a। फिर लेंथ का 1, तो यहाँ पर A minus b equal to 1 1 equals to a minus b। टाइम का minus -1, तो यहाँ पर -2a minus -1 equals to minus। minus 2A। equal to 1/2 तो लगता है यहाँ से एक वैल्यू तो सीधा मिल गया हमें, ये माइनस माइनस कैंसर, तो आपको पहला वैल्यू मिल गया क्या? a का। तो a is equals to 1/2। 2 अगर a का वैल्यू 1/2 है, तो यार देखो ना b का वैल्यू 1 से मिल जाएगा। 2 तो यहाँ से हमें ऐसा पता चला ना कि b जो हो वो माइनस a है, सो दैट विल बी -1/2। ये आपको b का भी वैल्यू मिल गया। t/λ। ठीक है, तो इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पुटिंग द
values of A and B A and B in equation number कौन सा 1. तो V is equals to K T raised to power 1/2 and lambda raised to power minus 1/2. तो V is equals to K T raised to 1/2 upon lambda raised to 1/2 लिखे तो चलेगा? यानी इसकी जगह पर ऐसा भी तो लिखेंगे T by lambda the whole raised to 1 by lambda. अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ K इक्वल्स टू 1. तो V हो जाएगा T by lambda the whole raised to 1/2 या तो आप उसको लिखो रूट ऑफ T by lambda. ठीक है. तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिल जाता है V is रूट ऑफ T by lambda. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. डन. अब आप चेक करें क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी वेवलेंथ आया? नो. फ्रीक्वेंसी आया? नहीं. तो एक नोट पॉइंट आ जाएगा क्या कि Speed of transverse wave on a stretch string does not depend on wavelength. speed of transverse wave does not Depend on Depends on Depends on wavelength not frequency. wavelength and on the frequency. wavelength and frequency. And frequency. and frequency. ये फर्स्ट बोर्ड वर्क में से आपको कोई भी डाउट है ऑफलाइन में से? હે ટાઈમ નથી ને પણ ટી જો ટાઈમ નથી. હા સિમ્બોલ્સ થી કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, ક્વોન્ટિટીઝ જોવાના. Sir, હા જી બોલો. ઓનલાइन में से कोई डाउट? sir, speed of transverse wave on a stretch string એવું લખવાનું ને કે આવી રીતના એ ચાલે? શેમાં? સર લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં તમે જે લખ્યું છે ને તે કરો. હા તો લખી દેવાનું. ચલો Sir, એ લખી દેવાનું ચાલે. હા જી બોલો. sir આ T માં બી T equal to mg અને લેમ્બડા માં એટલે માસ બાય વોલ્યુમ એવું આવે તો પછી માસ કટ ના થાય પછી? માસ બાય વોલ્યુમ નહીં લેવાનું. ધીસ ઇઝ લિનિયર માસ ડેન્સિટી હા એટલે વન સર ડાયમેન્શન. માસ બાય લેન્થ તો સર માસ તો કટ થાય ને પાછું. बट न्यूमेरिकल्स में आपको सीधा टेंशन दिया होगा, लैम्बडा दिया होगा और कहेंगे कि स्पीड फाइंड करो, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है. ઓકે સર. ठीक है. हाँ बोलो. સર આ જે મતલબ સ્પીડ ઓફ ટ્રાન્સફર છે એ તો ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે ને? અગર સ્પ્રિંગ અગર સોફ્ટ હશે તો પછી વધારે સ્પીડ હશે અને भाई स्ट्रिंग અને સ્પ્રિંગ તો બે કન્સેપ્ટ લઈ રહ્યો છે યાર. હા સર. સ્ટ્રિંગ અને સ્પ્રિંગ તો બે ડિફરન્ટ કન્સેપ્ટ ને સાથે ભેગા કરે. હા સર. चलिए नेक्स्ट टाइटल, an important concept again, speed of longitudinal wave in a medium. यहाँ पर स्ट्रिंग वेव नहीं आएगा क्योंकि ये साउंड वेव्स का एग्जांपल है. ठीक है. तो अब ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता था? ट्रांसवर्स वेव. सिमिलरली ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्पीड ऑफ longitudinal wave depends on कौन से फैक्टर्स भाई? तो फर्स्ट it is dependent on bulk modulus of a medium. उसका सिंबल कैपिटल B. बराबर. और दूसरा जो है that is density. ये 3D वाला डेंसिटी. हाँ तो डेंसिटी ऑफ rho मीडियम that is represented by symbol rho. तो कोई बता पाएगा बल्क मॉड्यूलस का डीएफ क्या? ml-1 t-2. भाई ऑल टाइप ऑफ, एक हिंट दे देता हूं मैं आपको. ऑल टाइप ऑफ मॉड्यूलस, सारे मॉड्यूलस का यूनिट होता है सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर. So what is the DF? m1l-1 M1 L t-2. minus 2. M1 L1 plus M1 L minus 1 और डेंसिटी होगा M1 m1 L minus 3 t0. T0. बराबर. तो स्पीड जो है
वो किस पर डिपेंड करता है? बल्क मॉड्यूलस एंड B डेंसिटी। अगेन वी raised to डोंट नो A कि rho कैसे raised to B. प्रोपोर्शनलिटी से वो डिपेंड करता है, तो वी अज्यूम टू पावर्स, तो एक A और दूसरा B, B बराबर है। तो व्हाट इज A एंड B? तो जो यहाँ पर लिखा वही लिखना है आपको कि Dimensions. यार क्या आ जाएगा यार, powers of B A and B rho equal to and K respectively. B raised to A rho B raised are powers of B and rho respectively, respectively. बराबर है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है, तो V इक्वल्स टू K K K B raised to A rho and rho raised to B. Next step, Putting the the dimensional formula DCF of each quantity dimensional formula for each equation in the quantity बना। equation. थैंक यू। हाँ welcome चलो, तो M0 L1 T minus 1 is is equals to equal K to K into M1 L N minus minus 1 T minus minus 2 2 raised to whole A. raised to A into M1 L M1 minus L 2 minus T 0 whole raised raised to to whole B. raised to B. बराबर, सिंप्लीफाई करो तो M0 So L1 T T minus 1 equals to K equals to K. K into M raised to M A raised raised to to minus A T T raised L to raised minus to minus A T raised to T raised to minus A 2A M raised to B M raised to B M L raised to L minus raised to minus raised to 3B minus T raised to raised to 0. raised to 0. नेक्स्ट स्टेप M0 0 L1 M A plus minus 3 L equals minus to A K minus into 3B M raised to A plus plus B B to minus 2A L raised to minus A minus A 3B plus B minus A minus T raised to 2A. minus 2A plus T raised to 0 minus 2A. नेक्स्ट पॉइंट, comparing Comparing the mass, length, and time, we get कंपेयरिंग द डायमेंशंस। 0 equals to A plus B. तो क्या minus होता है 4B equals to 0. equal So to mass, 0 is equal to length, B equal to One minus by 1 B by is 0 4. equal to A plus B. A A equals to plus 1 B by to 2. minus 0. 1 by तो 2. 0 इक्वल्स टू A प्लस B। लेंथ में N equals Minus A to minus minus A A Equal to minus minus A 1. minus 3B. 1 B equals to equal to minus A 1 by minus 4. 3B and time minus 1 equals Minus 2A Minus 1 is equals equal to to minus 1 -2A. A minus A 1 minus equal 1 to equals 1 to by minus, 2. फिर से यहाँ पर हमें by A 2. का वैल्यू मिल जाएगा 1 A by 2. equal to 1 by 2. equals to half. so therefore B equal to minus 1 by 4. A equals to A equals to 1 0.1. by 2। अब सीधा यहाँ से मिल जाएगा आपको B B का वैल्यू, minus 1 by 2. minus 1 by 2. Minus 1 by 2. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट, Values in equation 1. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and A B in equation and 1. B Respectively in equation 1. in equation number 1, so V is K, B raised to 1 by 2 and rho raised to, Minus 1 by so 2. V can be written B as equal K to root B B raised by to rho. 1 by 2. 1 rho B raised to half. Rho raised to 1 K by into B by rho. so that is K B by rho rho raised to 1 by raised to 1 by put 2. value of K, Putting K K equal equals to to 1. 1. put K equals to 1, To 1 raised to 0. In the तो V equation. हो जाएगा B by Root rho of B into whole B raised to upon 1 root by by 2, rho raised to 1 by या तो 2. Root B V by is rho. equals to root of B Root by, B by B upon B rho. by rho. बराबर। तो बराबर। यहाँ पर जो नोट पॉइंट लिखा था वो फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि स्पीड Does ऑफ not depend on wavelength or frequency And frequency. longitudinal wave, in a medium. Or in a medium depends on, does not mean Or does not depend पर on. हमारा does not नहीं, हमारा dependence है upon, Bulk modulus bulk modulus and Bulk Depends on. modulus and density of the medium. of properties of medium। does अरे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम्स हमने बोल दिया, यानी दोनों आ गया। Does कौन? depend on. बल्क मॉड्यूलस भी आ गया Density. एंड डेंसिटी भी आ गया। ठीक Sir, है, એટલે Next stress point, અને strain next બી લખાય point. ને? हाँ जी, Sir, એટલે bulk modulus ની જગ્યાએ stress, strain and density એવું ત્રણેય બી લખાય ને? हाँ लखा है। तो अभी आई गयो थोड़ा आगे,
और है क्या? बराबर છે દેખાય છે સર લાસ્ટ વાળું દેખાતું હતું ये सेकेंड लाइन लिख रहा है आपको? हाँ दिख યસ रहा है સર दिख रहा है? ओके हाँ है चल, तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नोट पॉइंट, इफ देयर इज ए लीनियर मीडियम, यहाँ पर 3D में था ना, तो डेंसिटी ले रहे थे, तो बल्क मॉड्यूलस दे रहे थे। अगर लीनियर Young's मीडियम है, modulus. एग्जाम्पल रॉड, जब आप रॉड को हिट करते हो तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगा ना, तो अगर फॉर्क हाँ ट्यूनिंग फॉर्क पे, तो अगर मैं रॉड लेता हूं तो इंस्टेड ऑफ क्या लेना पड़ेगा? यंग्स if मॉड्यूलस there is a linear Young's modulus. if there is a linear medium, instead of bulk modulus, हमें कौन सा मॉड्यूलस लेना पड़ेगा? यंग्स मॉड्यूलस यंग સવારનું Yes. modulus. Instead of Why? bulk modulus, we'll take कैपिटल वाई यंग्स मॉड्यूलस। तो फिर फॉर्मूला अपडेट होकर हो जाएगा v is equals to root of Under root Y by y rho. upon y rho. by rho। ठीक है, जब 3D में By rho। होगा तो हम लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब वन डायमेंशन मीडियम होगा तो विल टेक अ यंग्स मॉड्यूलस इंस्टेड ऑफ बल्क मॉड्यूलस। यहाँ पर कोई डाउट इन दोनों डेरिवेशंस में से? सर ऑफलाइन में से नहीं, तो ऑनलाइन वाले ग्रुप में से कोई डाउट? हाँ बोलो સર बोलो बोलो बोलो। મોડ્યુલસ આપણે એટલે લીધું કારણ કે મટીરીયલ પર ડિપેન્ડ કરે ને એટલે ને हाँ पर मीडियम 1D માં લીધું આપણે, જો Hello, લિનિયર sir. મીડિયમ લીધું। હેલો ક્લિયર? યસ સર સર બોલો। સર આ જે ટ્રાન્સવર્સ વેવ છે તો એવી રીતના પ્રેક્ટિકલી પેલા ઉપર ડિપેન્ડ કેવી રીતે ટેન્શન ફોર્સ ઉપર ને આવશે ને, આવશે હમણાં આગળ આવશે, જો ડેન્સિટી ન્યુમેરિકલ્સ આજે લઈશું ને એના પર બધું આવી જશે। એટલે સર એવું આપણાથી કહેવાય કે લોંગિટ્યુડનલ વેવ જે છે તો બલ્ક મોડ્યુલસ અગર વધારે હશે તો લોંગિટ્યુડનલ વેવ જે છે એ સ્પીડમાં ટ્રાવેલ કરશે એવું? ફરીથી બોલો। સર એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ જો વધારે હશે તો લોંગિટ્યુડનલ વેવ જે છે એ વધારે સ્પીડમાં ટ્રાવેલ કરશે એવું ને? હા તો એ જ થયો ને મતલબ ભાઈ। અને ડેન્સિટી અગર વધારે હશે તો પછી ઓછી સ્પીડમાં એવું ને? હા એટલું જ બરાબર। भाई आप लोगों को अगर चैट बॉक्स में कुछ मैसेज टाइप करना है और भेजना है तो आप लोग शीतल मैडम के नंबर पर आप भेज सकते हो अगर कोई डाउट है तो। સર બોલો। સર પેલા ફિઝિક્સના સિલેબસમાં તો 7 જ ચેપ્ટર છે ને ऐसे એસે 2 ના? हाँ तो શું પણ એટલે ના સર પૂછતો હતો। એ કેસે ભાઈ બધું જ કહેવામાં આવશે, તું અત્યારે કોપી કરી લે ને ખાલી બોર્ડમાં, સર વિડિયો બંધ થઈ ગયો થશે થશે હમણાં ફરવા ગયો થોડા આવશે। યસ સર પેલો વાળો ચાલુ છે છેલ્લું બોર્ડ વર્ક તો કરો તમે કમ્પ્લીટ, ત્યાં સુધી આવી જશે ફરીને।
सेकंड बोर्ड ब्लर देखाय છે સર દેખાતું નહીં કઈ ओके करिए चलो સર ઝાંખું ઝાંખું દેખાય છે. બ્લર ને ઝાખું જ કહેવાય. ઇંગ્લિશ ખબર નહીં પડતી મેં તો બોલ્યો बस હવે થઈ ગયું ને નેટવર્ક જોઈ લો. બેન્ડવિડ્થ લો છે લા સર તમારી સ્ક્રીન નાની થઈ ગઈ. સર તો નાની છે તોય ઝાખું થઈ ગયું. કશે થશે નેટવર્ક થોડું અલા, ઇશ્યુ હશે તું ને એટલે કેમ? થઈ જશે. સર બોલો સર વેક્યુમ નું બલ્ક મોડ્યુલસ હોય એટલે એક ટાઈપનું એર જ થયું ને એર સર તો થયું એમાં એટલે પછી બલ્ક boil- મોડ્યુલસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ પ્રેશર એટલે એનું 1 atm આવે. હા સર એનું બલ્ક મોડ્યુલસ 0 ના થવું જોઈએ તો વેલોસિટી 0 આવશે સાઉન્ડની શું સર વેક્યુમ નું બલ્ક મોડ્યુલસ 0 ના થવું જોઈએ એ તો આગળ જોઈશું લાવશે બધું આ ચેપ્ટરમાં સાથે સાથે ચાલો સર સર બોલો સર આ વેક્યુમમાં હવાના તો પછી પ્રેશર જ અપ્લાય ના થાય ને એમ તો પછી ના બધું થઈ જતું? ડિસ્કસ કરીએ પહેલા આટલું લખી લો. સર સ્ક્રીન ફરીથી બ્લર થઈ ગઈ. થશે થશે નેટવર્ક ઇશ્યુ છે ને થોડી વારમાં થઈ જશે.
Completed? No, sir. સર બોલો. સર આ સ્ટ્રેચ સ્ટ્રિંગ એટલે એમ ટેન્શન મેક્સિમમ હશે અંદર? યસ. હા સર. મેક્સિમમ ત્યારે કહી શકાય જ્યારે બ્લોકના નીચે વેટ મેક્સિમમ હોય બિફોર બ્રેકિંગ પોઈન્ટ, ત્યારે મેક્સિમમ ટેન્શન. હા સર. સર બોલો. સર સર બોલો. સર આજે સ્પીડ છે તો ઓફ લોંગિટ્યુડલ વેવ, તો એ પછી મતલબ જે પણ મીડિયમમાં વધારે ફોર્સ અપ્લાય થઈ શકે તો એમાં પછી વધારે હોય ને, કારણ કે બલ્ક મોડ્યુલસ પ્રેશરથી પ્રપોર્શનેટ છે એટલે. તો એમાં ફોર્સ કઈ આવેલા પાછો? એટલે સર કમ્પ્રેસિંગ ફોર્સ ના આવે એમાં. ખાલી તું બલ્ક મોડ્યુલસ સુધી રહેવા દે ને, વધારે આગળ એને સિમ્પ્લિફાય નહીં કરવાની જરૂર. ડન. સર યસ. No. Say from textbook, we have completed page number 374, 375. मिला पेज नंबर 374 पर आपको टॉपिक नंबर 15.4.1 स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग मिल गया? Yes, sir. वही फॉर्मूला है v इक्वल्स टू टी बाय, वो लोग सिंबल रखते हैं म्यू, बट जनरली लीनियर डेंसिटी सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, तो हमने लैम्बडा रखा है। फिर आप देखिए पेज नंबर 375 पर आपको दूसरा टाइटल मिल जाएगा स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोल दिया है तो मतलब वो तो साउंड वेव से हो गया,
तो उसका स्पीड का फॉर्मूला आप देखिए इक्वेशन नंबर 15.19, वो आपको मिल जाता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ b बाय रो, मिला। और उसके बाद नीचे इक्वेशन देखो 15.20, वो कब वैलिड आएगा जब आपके पास मीडियम होगा लीनियर, यानी कि मेटालिक रॉड वगैरह है। तो ये क्लियर सारे इंस्ट्रक्शंस। तो एक लास्ट पॉइंट आपको ऐड करना है ये यंग्स मॉड्यूलस के बाद, तो राइट डाउन वन पॉइंट। जनरली करो generally speed of longitudinal wave is greater in solids and liquids, is greater in solid and liquid compared to that in gases। क्यों ऐसा? बल्क मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस भी हो सकता है रीजन, यंग्स मॉड्यूलस भी हो सकता है रीजन। प्रीवियस चैप्टर जो था 9th चैप्टर, उसमें हमने बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड मटेरियल्स होगा ना, दैट विल बी हायर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस भी हायर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ गैसेस। और वेरिफिकेशन के लिए अगेन ऑन पेज नंबर 375 पर एक टेबल दिया है 15.1, चेक करिए, उसमें हर एक मीडियम में आपको स्पीड बताया लॉन्जिट्यूडिनल वेव का। तो आपको वैल्यू से एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि सॉलिड में आप देखो वो 6000 के रेंज में है, 5000 की रेंज में है, लिक्विड्स में देखो तो 1400 की रेंज में, और सीधा अगर आप गैसेस में चले जाते हो तो 300 900 की रेंज में। दिखा आपको? सर यस और नो? चलिए, तो सर विद दिस, हाँ बोलो સર એટલે એ તો એમને મેં ખબર પડે ને કારણ કે સોલિડ માં પાર્ટિકલ બહુ આમ ક્લોઝ હોય એટલે એનર્જી हाँ खबर જલ્દી पड़ी જતી જાય। जाए, अग्री। સર હા नेक्स्ट टाइटल प्लीज। हाँ बोलो। સર આ સોલિડ્સ હોય છે તો એમાં પ્રેશર અપ્લાય વધારે કરવું પડે, ગેસીસમાં ઓછું, એટલા માટે એવું કહી શકાય ને એવી રીતે પણ? કહી શકાય, વાંધો નહીં। જે સીધું બલ્ક યંગ મોડ્યુલ્સ માંથી કવર થઈ જાય એના માટે આપણે ચેક પ્રેશર પર જઈએ। नेक्स्ट टाइटल न्यूटन्स अजम्पशन, और एल्स दूसरा टाइटल न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स अजम्पशन और दूसरा टाइटल हो जाएगा न्यूटन्स फॉर्मूला। बोलो। ब्लू पोर्शन क्या भी नहीं बाकी जजो। चलो तो स्पीड वधार पे हेड। लिखा? Yes, sir. So the title is न्यूटन्स assumption, या तो उसका दूसरा टाइटल हो जाएगा न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या है ये न्यूटन्स assumption? तो उसने ये सोचा था, न्यूटन ने, ना पे अटेंशन, अब बाद में लिखना आप लोग। न्यूटन का assumption ये था कि वेव प्रोपोगेशन जो होगा that will be, और एल्स उसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर आप टेक्स्ट बुक में से रिकॉल करो तो वेव ट्रैवलिंग है, आई थिंक सो, इंस्टेड ऑफ प्रोपोगेशन। तो चलेगा दोनों भी। दैट इज ऑन पेज नंबर 376। प्रोपोगेशन ही यूज कर रहे हैं। सो वेव प्रोपोगेशन is an isothermal process। न्यूटन का ऐसा
assumption था कि जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है that is in which process? If it is an isothermal process, तो क्या आपको याद है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या Temperature कांस्टेंट constant. रहता है? Yes, So sir. कौन से दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा? बॉयल्स लॉ, PV equals प्रेशर to इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद आया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा था ना यार। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, हाँ या ना? तो V को मैंने यहाँ पे लेके आया, तो P इंटू V, प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्लियर? ये क्लियर? अब आगे आते हैं। नाउ आपको इस इक्वेशन को डेरिवेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। लेकिन जब आप डेरिवेट करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डेरिवेट करोगे, और यहाँ पर तो क्वांटिटी प्रेशर और वॉल्यूम है, तो जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज का डेरिवेटिव आप थर्ड डिफरेंट क्वांटिटी से करते हो तो वहां पर आ जाता है एक नया रूल, दैट इज नोन एज चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। करवाया है क्या आपको? ये क्या बात कर रहे हो? करवाया है सर 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर में था, टू गेट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। भूल जाते यार, ऐसा थोड़ी। चलो तो अप्लाई करिए, नहीं याद है तो चलो अभी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट रूल उसको कहेंगे, या तो उसका दूसरा नाम चेन रूल हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है चेन रूल, तो प्लीज पे अटेंशन। मैं क्या करूंगा, पहले प्रेशर को रखूंगा कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव किसका? वॉल्यूम का। एक क्वांटिटी कांस्टेंट तो दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहले का डेरिवेटिव, तो पहला क्वांटिटी कांस्टेंट। वंस अगेन, पहला क्वांटिटी कांस्टेंट रहा तो दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस पहले का डेरिवेटिव लिया तो दूसरा क्वांटिटी कांस्टेंट। एक डेरिवेटिव दूसरे का कांस्टेंट रखना है, और अगर आपको दूसरा कांस्टेंट रखना है तो पहला डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है? और RHS में तो देखो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा? तो गप्पे मारो, जीरो। डेरिवेटिव का कांस्टेंट हमेशा होगा जीरो। इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में अभी भी कोई भी डाउट है तो पूछ। सर एक बार फरीથી સમજાવો ને। वंस मोर, यस सर, Once more. once more प्लीज। वंस मोर, ओके। एक बार और। एक बार और, कोई बात नहीं। देखिए, तो प्रेशर है, पहला क्वांटिटी कौन सा? तो मैंने उसको कांस्टेंट रखा, हाँ या ना? तो डेरिवेटिव किसका लिया? वॉल्यूम का। प्रेशर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव वॉल्यूम का, प्लस दूसरी बार उल्टा, प्रेशर का डेरिवेटिव रखा हमने तो उस टाइम पर वॉल्यूम कांस्टेंट। एक कांस्टेंट, दूसरा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव तो दूसरा, इज इक्वल्स टू RHS में तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आपको देगा क्या? डन। तो अब क्या करना है आपको, तो देयरफॉर PdV इज इक्वल्स टू, एक का साइड चेंज कर दो तो माइनस V इंटू DP हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है इसको, तो अब इसको और रीअरेंज क्या करें, तो प्रेशर P में रहने देता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस DP इंटू V बाई DV होगा, ये नीचे आ गया, आया ना? फिर से मैं लिखता हूं इसको, चलो, DP इंटू V अपॉन DV। अब इस V को ऊपर रखो, या तो मैं ऐसा लिखता हूं तो भी चलेगा, DP अपॉन DV बाई V, तो भी चलेगा ना, अल्टीमेटली ये आएगा तो ऊपर ही। तो पहचानो भाई ये कौन है? एग्जैक्टली, तो ये आ जाता है बल्क मॉड्यूलस। तो कहने से प्रेशर का इक्वेशन रहेगा सेम एज बल्क मॉड्यूलस, के प्रेशर इज सेम एज बल्क मॉड्यूलस। ये तो हमने 9th में भी तो सीखा था। तो रिसेंटली अभी जो हमने वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन अ मीडियम का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला क्या था? तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या था? V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ B बाय रो। अरे तो अब मैं उसे रूट ऑफ P बाय रो भी तो लिख सकता हूं, इस पर दिस अजम्पशन। किसका अजम्पशन?
न्यूटन का assumption। और न्यूटन का assumption क्या था कि वेव प्रोपोगेशन कौन से प्रोसेस थ्रू हो रहा है, आइसोथर्मल। अब वेरीफाई करते हैं कि न्यूटन का assumption सही है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है v is equals to root of p by rho, बराबर। अब एयर ले लेते हैं मीडियम को, तो एयर का प्रेशर होता है जनरली 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को पास्कल में अगर आप कन्वर्ट करो तो दैट इज 1.013 into 10⁵ पास्कल। एंड डेंसिटी ऑफ एयर होता है अप्रॉक्स 1.29 के आप 1.3 लेते हो तो भी चलेगा। दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ एयर, बराबर है। अब सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि स्पीड का हमें वैल्यू कितना मिलता है। तो प्रेशर है 1.013 into 10⁵ अपॉन 1.29। सॉल्व करो, रेशियो बताओ कितना आया विदाउट फाइंडिंग आउट रूट। हाँ, रूट सीधा फाइंड मत कर। 0.785 into 10⁵. 0.785 into 10⁵ है ना। तो अब इसका रूट निकालना है, बट ये पावर ऑड है 2.8 into तो एक 10⁵. डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, तो 7.85 into 10⁴ हो जाएगा। इसका रूट बताइए मुझे। 2.8 into 10⁵ बड़ा, तो क्या मैं इसको 280 मीटर पर सेकेंड लिखूं तो चलेगा? तो ये हो गया गलत। क्यों गलत? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव के साउंड वेव्स इन एयर वैल्यू होता है अप्रोक्स 330 मीटर पर सेकेंड। जनरली स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन एयर होता है कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर आया कितना? वेरिएशन कितना? वेरिएशन हुआ, तो ये वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये न्यूटन बाबा का जो अजम्पशन था कि वेव का प्रोपोगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वो अजम्पशन निकला रॉन्ग। समझ में आया? तो भाई करेक्शन क्या करना पड़ेगा? तो करेक्शन करता है एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है लाप्लासे करेक्शन। लाप्लासे करेक्शन। अब इसने ये करेक्शन बताया था न्यूटन्स के अजम्पशन में कि भाई आपका सोचना गलत था। क्या? कि जो वेव प्रोपोगेशन होता है, न्यूटन भाई क्या कहते थे, वेव प्रोपोगेशन कौन से प्रोसेस थ्रू होता है? आइसोथर्मल। तो नहीं, लाप्लासे बोलता है नहीं भाई, आपका अजम्पशन गलत है कि दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। किसी को पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हीट एनर्जी रिमेन्स डेल्टा Q इक्वल टू 0। ओके भाई, बस अभी केमिस्ट्री का यहाँ पर कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन मत दो, ये फिजिक्स का क्लास है। तो अभी हम इतना ही समझते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसे आपने बताया क्या कांस्टेंट? हीट इज कांस्टेंट। बस इतना हम अभी लिखते हैं। ज्यादा डिटेल फिजिक्स में हम भी डिराइव करेंगे, लेकिन लेटर ऑन, अभी नहीं। तो ये करेक्शन था किसका? लाप्लासी का। उसने क्या बताया कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, तो उसमें अगर ये इक्वेशन आप लो तो वो इक्वेशन आ जाता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि P इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आई बात कि ये गामा कौन? P तो पता है प्रेशर, V तो पता है वॉल्यूम, तो ये गामा कौन? सो गामा इज नोन एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये कौन सा गैस हम लेते हैं उस पर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी डिटेल में हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम के ऊपर एक पावर आ जाएगा दैट इज नोन एज गामा, एंड गामा इज नोन एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो फिर से नेक्स्ट टाइप क्या है? टेक चेन रूल, या तो उसका दूसरा नाम प्रोडक्ट रूल। क्या करना है अब तो आपको पता चल गया। पहली बार मैं किसको कांस्टेंट रखता हूं? प्रेशर को कांस्टेंट। अब ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन यहां पर ही लिख लेता हूं, तो एक ही स्क्रीन पर आ जाएगा ऑनलाइन वालों के लिए।
पी वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट. गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट. तो अब आप प्रोडक्ट रूल, चेन रूल अप्लाई करो. क्या होगा? पहले कौन कांस्टेंट भाई? चलो पहले मैं पी को कांस्टेंट लेता हूँ. अब डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला पावर आगे आएगा, रेज टू -1 होगा. फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू dx गिव्स व्हाट? n into x रेज टू n -1. तो सिमिलरली गामा आगे इंटू v रेज टू गामा -1 हुआ. इतना आया समझ में? अब आगे हमने तो डेरिवेटिव लिया v रेज टू पूरा गामा का फंक्शन है, पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हमने, ये पूरा v रेज टू गामा, पर उसके अंदर वॉल्यूम अभी भी रह गया. तो सेपरेटली फिर से वॉल्यूम का डेरिवेटिव वंस मोर. p तो कांस्टेंट, पहले आपने v रेज टू गामा का पूरा डेरिवेटिव लिया तो v गामा आगे v रेज टू गामा -1, ये फॉर्मूला से. लेकिन ये तो पूरा v रेज टू पावर गामा के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके अंदर बेचारा जो गामा था वो तो रह गया. तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर डेरिवेटिव, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ फंक्शन. न्यूमरेटर यानी वो पावर जो है, पावर के बिना अब आपको उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी dv. एक बार पावर के साथ डेरिवेटिव, एक बार विदाउट पावर के साथ डेरिवेटिव, इसे कहते हैं इनर डेरिवेटिव या तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव. ये पॉइंट क्लियर यहां पर? अब इसे मानो गोली, ये पता चल गया. प्लस रुको एक मिनट, अभी किसका डेरिवेटिव? प्रेशर का डेरिवेटिव. तब ये पूरा फंक्शन यानी कि कौन? v रेज टू गामा हो जाएगा कांस्टेंट. प्रेशर का डेरिवेटिव तो वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आरएचएस में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. ठीक है. अब आगे p इंटू गामा, इसे आप स्प्लिट कर दो तो कैन आई राइट एज v रेज टू गामा इंटू v रेज टू -1 इंटू dv. हाँ या ना? पावर मैंने स्प्लिट कर दिया इसको. प्लस dp dv by v इंटू v रेज टू गामा इक्वल्स टू 0. हाँ या ना? अब आप LHS के टर्म 1 टर्म 2 में से चेक करो कॉमन क्या निकला यहाँ पर? v रेज टू गामा कॉमन निकला. हाँ या ना? तो ब्रैकेट में रह जाएगा p v रेज टू गामा, और ये v रेज टू -1 उसको मैं नीचे भी लिखूं चलेगा? dv by हाँ या ना? सो ये मैंने नीचे ले लिया वॉल्यूम को. सर अब कुछ बाकी रहा. सर कैमरा तो लेफ्ट साइड लो ना. कैमरा ने थोड़ा लेफ्ट साइड लो, कट થઈ જાય. हाँ सर. एक मिनट भाई, ऑनलाइन वाले ये स्टेप दिखा आपको? ये लास्ट No. वाला ना सर, अर्धू कपाई જાય છે. into gamma सर गामा की देखाई थी. करो ने लेफ्ट साइड. बस अर्धू सर हजू करो ने. अर्धू सर बस થઈ ગયું. चलिए, अभी मैंने इस इक्वेशन में से क्या कॉमन निकाला? v रेज टू गामा निकाला. क्या बात कही रहा यहाँ पर? p इंटू गामा अपॉन में v इंटू dv प्लस इज इक्वल्स टू 0. तो जनरली गामा का वैल्यू हमेशा होगा ग्रेटर देन 1, यानी v रेज टू पावर होगा ग्रेटर देन 1. सो दैट मीन्स here v raised to gamma is greater than 1, therefore v raised to gamma cannot be equal to 0. यानी ये टर्म 0 तो नहीं हो सकता. तो किसको 0 होना पड़ेगा? ब्रैकेट वाले टर्म. तो therefore p by v into dv into gamma plus dp should be equals to, dp को बोल साइड चेंज करो तो p by v into dv into gamma equals to minus dp इक्वल्स टू माइनस dp. अब v को बोल यहां पर जाओ, dv को बोलो नीचे आओ. तो देयरफॉर p इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस dp इंटू v अपॉन dv. तो फिर से इसके जैसा क्या मैं इसको ऐसा माइनस dp अपॉन dv
बाय वी लिख सकता हूं। तो ये तो क्या हो गया भाई, तो अब आपको ये पता चला कि बल्क मॉड्यूलस का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, तो P इंटू गामा इक्वल्स टू होगा बल्क मॉड्यूलस। तो ये एक डिफरेंस है, आप नोटिस करिए। लाप्लास करेक्शन में हमें बल्क मॉड्यूलस का रिप्लेसमेंट मिला प्रेशर इनटू एडियाबैटिक कांस्टेंट, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला में हमें मिला था कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर। तो क्या डिफरेंस आ गया यहां पर, अब चेक करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो फिर से फॉर एयर भाई आप इसका तो वैल्यू जानते थे प्रेशर का, बराबर। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला बना देते हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, क्या हो जाएगा फॉर्मूला वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, नहीं पहले तो बल्क मॉड्यूलस को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, सो दैट विल बी रूट ऑफ p गामा बाय रो। अब एयर के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.4, तो भाई p बाय रो, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल्स टू p इंटू गामा बाय रो, सो दैट विल बी, अरे भाई p बाय रो का तो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ही है ना, 280 हाँ या ना। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं तो भी चलेगा, रूट गामा इंटू रूट ऑफ p बाय रो, हाँ या ना। सो v इक्वल्स टू रूट ऑफ, सिर्फ आपको 1.4 फाइंड करना है, इंटू 280, तो आंसर रेडी है। तो 1.4 का रूट कितना, 1.18 इंटू 280 करो तो कितना, 331.3। बोल, ये तो मजा आ गया। तो ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नियरली टू द 330 मीटर पर सेकेंड। तो भाई यहाँ पर एक कंसेप्ट गलत था और उस गलत कंसेप्ट को करेक्ट किया हमने। तो गलत कंसेप्ट किसका था, न्यूटन्स का था। उसने क्या अज्यूम किया था कि वेव प्रोपोगेशन हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट ऑफ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। उसको आप सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट रूल हो, चेन रूल हो, तो उससे आपको ऐसा मिला कि बल्क मॉड्यूलस होता है प्रेशर। उसको फॉर्मूला में रिप्लेस किया तो स्पीड ऑफ साउंड वेव आ गया 280 मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी फार फ्रॉम द रियल आंसर। तो फिर इसका करेक्शन किया लाप्लास ने और उसने बताया कि वेव प्रोपोगेशन आइसोथर्मल नहीं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। यानी इक्वेशन आपका बनना चाहिए पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, नॉट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो उससे सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पी इनटू गामा, और फिर गामा का वैल्यू एयर के लिए हमने ले लिया 1.4। तो उससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आवर आंसर इज एग्जैक्टली टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इज द कांसेप्ट क्लियर नाउ? कोई डाउट सर? इन दोनों डेरिवेशंस में कोई डाउट? सर हाँ बोलो बोलो। 1 मिनट, ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स थोड़ी देर के बाद, पहले ऑफलाइन वालों के डाउट्स हो जाए। एक मिनट भाई, तू आनी बात करे से नहीं आना बात। हाँ હવે આમાં શું કહો છો બોલો? કાઢ નાખ્યું। બરાબર બરાબર। હવે v રેસ ટુ ગામા છે ને એનું ડેરિવેટિવ લીધું આપણે, પણ એ v નો ડેરિવેટિવ વિથ પાવર। હવે એની અંદર v હજુ બી વેરિયેબલ છે, એટલે વેરિયેબલ અહીંયા બે ટાઈપના થઈ ગયા, વેરિયેબલ વિથ પાવર એનો ડેરિવેટિવ થઈ ગયો, હવે વેરિયેબલ વિધાઉટ પાવર એટલે v નું ડેરિવેટિવ બે વખત થાય, because as p is constant તો v is variable. So first derivation is a derivative of variable with the power and another derivation is a derivative of variable without power. એટલે આ વેરિયેબલ નું જ ડેરિવેશન છે but with and without power. Sir, આપણે ડેરિવેટિવ લીધો with respect to time લીધો ને? નહીં, એ આપણે મેન્શન કરીએ અગર બીજા કેસીસમાં થર્ડ ફોર્થ ફિફ્થ ચેપ્ટરમાં જેટલા લેતા હતા કે અગર વેલોસિટી છે, વેલોસિટીનો ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ લો, ધેટ વિલ બી એક્સેલરેશન। તેવી રીતે અહીંયા ખાલી હજુ આપણે ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શેના લઈએ એ મેન્શન નથી કર્યું, એટલે ખાલી ડીવી ખાલી ડીપી કે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ તો નીચે ડીટી ડીટી મૂકવું પડે। ડન? સર પછી આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ છે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ એટલે सर तो पीवी भाई आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है? यस सर। वो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ।
वो था पीवी इक्वल्स टू ओके, तो केमिस्ट्री में आप एनआरटी सीखते हो, ठीक है, एनआरटी ऐसा इक्वेशन तो था, बराबर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, और एन तो है नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट। तो भाई एलएचएस में क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ पीवी, तो आरएचएस में तो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो इसलिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आया, ठीक है। ऑफलाइन के सारे डाउट्स क्लियर? तो भाई नेक्स्ट, अब आप Sir, लोग ऑनलाइन वाले वन वन, हाँ बोलो। સર આજે સેકન્ડ બોર્ડ છે ને એમાં તમે સેકન્ડ લાઈન જે લખી ને P ઇન્ટુ ગામા V સર એ સ્ટેપ ના ખબર પડી. હા આની વાત કરો છો? ના સર સૌથી ઉપર હા એની નીચેનો. આ પાર્ટ હા સર એ ના ખબર. ઓકે कर સર दो અને कर दो સ્ક્રીન થોડી બ્લર થઈ. ओके कर दो कर दो। भाई ये लिख लो, फिर आपका ब्रेक। देखिए किसको डाउट था ऑनलाइन में से? સર મને ओके तो मने सांभळो। સર તનિષા. तनिषा, ओके तनिषा जी, पहली बार मैंने हाँ। प्रेशर को रखा कांस्टेंट, ये क्लियर। હા સર. फिर डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा मुझे? वॉल्यूम का, ये भी Volume। क्लियर। હા लेकिन સર. पहले हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेंगे विथ पावर, यानी विथ गामा। હા सर. तो गामा वो विथ पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा गामा आगे रेस टू गामा -1 हो गया। હા सर. हाँ तो ये हमने वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी वॉल्यूम वेरिएबल था, विथ पावर का डेरिवेटिव लिया। अब हाँ, सर। ये पावर नहीं है तो सिर्फ हाँ। वॉल्यूम को गिनो, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव डीवी हुआ, હા સર. ये गया दिमाग में। હા સર. फिर बात सिंपल हो जाती है कि अब प्रेशर का डेरिवेटिव तो पूरा का पूरा ये वॉल्यूम वाला टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0। યસ સર અંડરસ્ટુડ. आगे क्लियर? યસ સર. सर गुड, चलो और कोई सर। डाउट ऑनलाइन में से? सर और ये सेकेंड बोर्ड अभी भी ब्लर है कि आ गया प्रॉपर? सर તમે કીધું ને પેલું પાવર લેવાનું પછી પાવર વગર લેવાનું, તો એવો રૂલ છે કે પાવર લેવાનું પાવર? हाँ जी, हाँ जी। અને સર આ જે એડિયાબેટિક કોન્સ્ટન્ટ છે એ મતલબ શું પ્રેક્ટિકલી આ એ બધા ગેસીસ મોનોએટોમિક ડાયએટોમિક ને એવા બધા ગેસીસ આવશે તમને અત્યારે આ 11th માં જ, ત્યારે આપણે વધારે ડિસ્કસ કરીશું ડિટેલમાં પહેલા। હા સર. અને સર આજે ન્યૂટનનું જે કરેક્શન રોંગ હતું તો એનું તો ડેરિવેશન આવે ને એક્ઝામમાં? ફરીથી પૂછો। ન્યૂટનનું જે આજે ફોર્મ્યુલા તો એ રોંગ હતો તો પછી એનું ડેરિવેશન તો ના આવે ને એવું? એનું ડેરિવેશન પહેલા આવી શકે ભાઈ, એવું કોણે કીધું કે અઝમ્પશન એનું રોંગ હતું એટલે થિયરી કરવાની પ્રિપેર? એવું ના ચાલેલા। અને સર મતલબ હા તો જો ને। સર હા બોલો। સર તો એના ફોર્મ્યુલા મતલબ અપ્લાય જ ના થાય પછી કોઈ પણ એવું ક્વેશ્ચનમાં? ભલે અપ્લાય ના થાય પણ એનું અઝમ્પશન આખું આપણે યાદ તો રાખવાનું ને, અને કરેક્શન પછી એને લાપ્લાસે કર્યું તું। હા સર. સર હમ સર આ લાપ્લેસ હતો એવા અઝ્યુમ કરેલું કે પ્રૂફ કરેલું? એનું બી અઝમ્પશન, બટ એ અઝમ્પશન પછી રાઈટ થયું એટલે એને ન્યૂટનના અઝમ્પશનને કરેક્ટ કર્યું એટલે એનું ટાઇટલ આવી ગયું લાપ્લાસે કરેક્શન। સર એડમિન ટુ ની સ્ક્રીન છે ને હલલ કરે છે। થઈ ગયો હવે સ્ટડી, હવે નહીં હલતું હોય જો સ્ક્રીન બરાબર છે। હવે હજુ થાય છે વાઇબ્રેટ? હા સર। હા શું છે અહીંયા સ્કૂલમાં થોડા થોડા અર્થક્વેક નાના નાના આયા કરે છે એટલે વાઇબ્રેશન થયા કરે તો થોડું। હા બોલો। સર આ તમે પેલું જે ડેરિવેટિવ લીધું ને પીવી ગામા વાળું, હાજી સર એનું નામ શું હતું એટલે કયો મેથડ? પ્રોડક્ટ રૂલ ચેઇન રૂલ। એ લખી દઉં ફરીથી, બીજી વખત લખવાનું હતું એમાં રહી ગયું।
સર બોલો. સર પેલું જે આ ડેરિવેટિવ લીધું મતલબ બંને કેસમાં ન્યૂટનમાં અને લેપ્લેસમાં, તો એમાં આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોઈ વસ્તુ ના લીધી એવું ટાઈમ કે એવું, ખાલી ડાયરેક્ટ એવું રૂલ છે લેવાય એવું? લેવાય વાંધો નહીં. પણ એ સર એવું જનરલી તો ટાઈમ સાથે લઈએ તો પછી એવું ના લેવાય ટાઈમ સાથે? જનરલ એવું નહીં હોતું, એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ છે શેના રિસ્પેક્ટ થી તારે ડેરિવેટિવ લેવું. સર કોઈ પણ એવું વેરિયેબલ હોય તો એના રિસ્પેક્ટ થી પણ એવું લઈ શકાય ને, અગર પ્રેશર ને વોલ્યુમ સાથે લેવું હોય કે એવું? લેવાય. સર ડન સર. વધારે ચાલે, વધારે એક્યુરેટ. સર હા બોલો. સર આ જે માઇનસ ડીપી બાય ડીવી બાય વી આવ્યું, તો એ તો એવું કહેવાય ને કે બલ્ક મોડ્યુલસ ઇન્સ્ટન્ટ. તો એ તો લખ્યું છે ભાઈ આપણે, જો ને ડીપી બાય ડીવી બાય વી એટલે બી. એટલે હા સર, મતલબ એ ઇન્સ્ટન્ટ ઉપર આવ્યો ને કે એવું એવું તો ડેલ્ટા વાળું નથી, એટલે એવું એ રીતે. On page number completed all the theory till topic 15.4. अभी 15.5 से सब कुछ बाकी है, बट अब जितना भी आज हमने पढ़ा उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो सब कुछ कंप्लीट करना शुरू करते हैं आफ्टर ब्रेक. ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स का राइटिंग वर्क हो गया कंप्लीट? नो सर. યસ સર. સર બ્લર થઈ ગઈ સ્ક્રીન. થશે. और अगर आप फोकस करो, ये न्यूटन अजम्पशन जो था जिसका आंसर हमने v इक्वल्स टू 280 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया, थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो एग्जाम्पल 15.4 था. बोलो, पता ही नहीं चला. थियरी में गलती से एक क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व. સમજ? એ આટલું જ છે, અહીંથી આમ જવાનું છે. તો આમાં તો ચક્કર આવી જાય બધા. ચલો ભાઈ 5 minutes break. Right now the time is 10:35 हुआ. 10:37 बता रहा है. थैंक यू. 10:36 to 10:41. મારામાં તો 37 બતાવે છે. સર મારામાં 41 બતાવે. જેનામાં જે બતાવતા હોય આપણે 10:41 એ રિઝ્યુમ કરીશું, બરાબર? મારમાં તો 11 બતાડે. લેક્ચર પૂરો થઈ
Yes. Chalo, all of you are back now. Now see. आपको ये क्वेश्चन लेना है एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल 4 था आपके। नाउ विल टेक एग्जाम्पल नंबर 3। चलो रीड करो। Scale wire 0.72 meter long. For scale wire 0.72 meter long. 0.72 meter long, फिर Has a mass of 5.0 into 10 raised to minus 3 kg. 5.0 into 10 raised to minus 3 kg। हाँ, फिर The wire is under a tension of 60 Newton. टेंशन T कितना? 60 Newton. 60 न्यूटन। What is the speed of the transverse wave on the wire? बराबर। तो what is the formula of speed of transverse wave? Sir, V equals to V equals to root of t by lambda. V is equals to root of t by lambda। lambda lambda क्या होता है? linear mass density of wire। Yes, sir. So therefore can I say lambda is nothing but mass per unit length। तो करो सॉल्व 5 into 10 raised to power minus 3 upon 0.72। कितना आया ये वैल्यू? 6.94 into 10 raised to 3 into 10 raised to power minus 3 kg per मीटर। sir ठीक है। टेंशन आपको दिया था स्ट्रिंग के बिलो 60 न्यूटन। तो आपको कैलकुलेट करना था स्पीड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो V is so therefore V is 60 upon 6.94 into 10 raised to power minus 3। उसका रूट यानी ये हो जाएगा 60 into 1000 upon 6.94। निकालो रूट। पहले रेशियो फाइंड करो। नहीं, पहले रूट के बिना आंसर तो बताओ। 8.6455 विदाउट रूट ना? 45.45 ओके। अब रूट निकालो। डन। आंसर वेरीफाई करो। बराबर है। तो एग्जांपल नंबर 3 and 4 हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पर्सन। Thank you. Exercise. Question 1. A string of mass 2.5 kg. रुको। फॉर अ स्ट्रिंग मास कितना? 2.5 kg. मास इज 2.5 kg। फिर Is under a tension of 200 kg. The length of a stretched string is 20 meters. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? ओके। तो हाउ लॉन्ग द डिस्टर्बेंस ओके ओके मतलब टाइम फाइंड करना है आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी लेना है। यानी क्वेश्चन का लॉजिक समझो। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, बराबर। उसके नीचे आपने कनेक्ट किया ब्लॉक।
ऑफ मास 2.5 kg, उससे क्या हुआ, जनरेट टेंशन, यानी कि कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा, ट्रांसवर्स वेव। अब यहां से ट्रांसवर्स वेव जनरेट होके ट्रैवल करेगा 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 अप टू दिस पॉइंट। तो एक एंड से, मान लीजिए ए एंड से ट्रांसवर्स वेव गया और बी एंड तक पहुंचा, तो कितने टाइम में पहुंचा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो एक कॉमन सेंस यूज करिए, आपको टाइम फाइंड करना है, आपको टाइम फाइंड करना है। अगर कहीं से आपको स्पीड मिल जाता है और डिस्टेंस मिल जाता है तो टाइम मिल जाएगा। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो मुझे ट्रांसवर्स वेव से मिल जाएगा, बट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? कैन आई से दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वायर? वो तो है हमारे पास, तो सिर्फ स्पीड फाइंड करने की जरूरत है। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? Root of T upon lambda. तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव is given as v equals to Root of T upon lambda. t by lambda। फिर से लैम्बडा नहीं है तो फाइंड कर लेते हैं, तो फॉर्मूला अपडेट करो तो ये देगा t अपॉन लैम्बडा ट्वेंटी अपॉन m 2.5. करो कैलकुलेट, रूट के साथ आंसर बताओ। 1600 1600। तो फिर 40 स्पीड कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड होगा। नाउ टाइम टेकन बाय कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, टू मूव फ्रॉम One end to the other end. one end to other end is given by time is distance upon speed। distance कौन, length upon speed v। length कितना, 0.5 मीटर 0.5 20 सेकंड upon, so answer will be, verify करो, आंसर वेरीफाई करो, स्पीड का आंसर वेरीफाई करो, टाइम का आंसर वेरीफाई करो, बराबर है, राइट है। तो वी टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। From the top of a tower of height 300 meters smashes into the water. हाइट ऑफ टावर, 300. तो हाइट ऑफ टावर कितना है, 300. तो रुको एक मिनट, हाँ एच 300 मीटर, फिर Smashes into the water of a pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top? Then the speed of the sound is 340 meters per second. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जिसका सिंबल v, बराबर, तो ये कौन है v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v कितना, 340 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय दैट स्प्लैश टू हर्ट बाय द पर्सन। और क्वेश्चन पहले डायग्राम से आप समझो, कंसीडर करो कि ये एक टावर है, बराबर, टावर से यहाँ पर एक पर्सन ने स्टोन को किया रिलीज नीचे, ठीक है। अब टावर के नजदीक में नियर बाय आप ऐसा विजुअलाइज करो कि एक वाटर सरफेस है, ऐसा पानी है नियर, यानी लेक में पॉन्ड बॉन्ड होगा नजदीक में कोई, वहां पर स्टोन हुआ फ्री फॉल, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये स्टोन वाटर सरफेस को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो एक साउंड क्रिएट होगा, और वो साउंड ऊपर आते आते फिर वो पर्सन को वापस सुनाई देगा। वेल में आप स्टोन डालते हो तो स्टोन जब वाटर सरफेस को हिट करेगा तो उसका साउंड आएगा ना, तो दैट इज नोन एज स्प्लैश। तो स्प्लैश हमें कितने टाइम के बाद सुनाई देगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कहने से now the time taken by the splash to hurt by the person will be total time, sum of total time। पहला टाइम कौन सा, स्टोन को वाटर सरफेस पर जाने के लिए, तो दूसरा टाइम कौन सा, वेव्स को, साउंड वेव्स को ऊपर आने के लिए, है या ना। तो आपको कैलकुलेट करना है टी, तो मैं टी लेता हूं T1 प्लस T2। तो T1 कौन, time taken by stone to reach pond the water surface। तो यार T2 कौन, time taken by wave to reach the ear of person।
standing तो on स्प्लैश splash. लिख दो तो चलेगा ना? टाइम टेकन बाय स्प्लैश टू रीच दी पर्सन. तो हाँ जी, taken by sound of splash. चल तेरी इच्छा पूरी कर दो. साउंड टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच दी पर्सन. Ear of person. હવે ઈયર હમણાઈ ગયો. ईयर માંથી સંભળ લે જબરો કામ. चलिए, तो अब T1 की बारी. T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे अब? तो आप देखिए ये स्टोन हो रहा है रिलीज. तो केस वन हम सॉल्व करेंगे फॉर स्टोन. तो स्टोन रिलीज हो रहा है यानी फ्री फॉल हो रहा है. फ्री फॉल में दो चीजें फिक्स है. Gravitation. इनिशियल वेलोसिटी 0 Zero. and a is equals to g minus 9.8. तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है. तो क्या आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है? v equals to गप्पे बाजू. मैं लूंगा d Half equal to dt square. v0t plus half at square. पूछो क्यों? भाई डिस्टेंस है जो स्टोन ट्रैवल करेगा. इनिशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट 0, a is g, तो टाइम मिल जाएगा ना. तो Yes, ये तो sir. गया. h क्या लेने पड़ेगा हमको? -300. क्यों? डाउनवर्ड मोशन. बराबर है. Sir, height तो Equals. 300 જ લેવાની હતી ને minus. હાઈટ નહીં, આપણે આ d ને લઈએ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ भैया. हाँ सर हाँ. थैंक यू. तो g का माइनस साइन आप बताया 10 लेने के लिए आपको, तो 9.8 ही लेंगे इनटू T1 स्क्वायर केस 1. चलो तो माइनस माइनस गया, ये आ जाएगा 600 इक्वल्स टू 9.8 T1 स्क्वायर 7.82. कितना 61.22. तो रूट निकालो 7.82 सेकेंड. ये आ गया पहला टाइम. कौन सा टाइम? टाइम टेकन बाय दैट स्टोन टू रीच वाटर Water सरफेस. surface. अब दूसरा केस ये सॉल्व करेंगे हम किसके लिए? फॉर साउंड वेव्स. अब लॉजिक दूसरा Time समझो. required to that sound wave. दूसरा लॉजिक समझो. पहले स्टोन का फ्री फॉल था और वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में था यानी एक्सेलरेटेड मोशन में था. लेकिन साउंड वेव्स जो है वो तो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता. साउंड वेव्स अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ट्रैवल करेगा इस मैनर में, ऐसे लाइक दिस. समझ में आया आपको? तो वो तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. कांस्टेंट स्पीड यानी कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है. जब एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं तो हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूलाज है काइनेमेटिक्स के. यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक फॉर्मूला. यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक फॉर्मूला. क्या? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिर्फ एक फॉर्मूला. भाई आप देखिए, सोचिए, साउंड वेव्स को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ता है? कैन आई से अगेन इक्वल टू हाइट ऑफ टावर. तो डिस्टेंस की जगह पर मैं लेता हूं टाइम, सॉरी h हाइट, और टाइम की जगह पर आ जाएगा t2. तो इक्वेशन बने ये t2 का. व्हाट इज t2? तो h by v हो जाएगा. क्या आपके पास h है? क्या v है? क्या नो कैलकुलेट? 0.88 सेकेंड. पर हमें क्या ये टाइम चाहिए था? नहीं, हमें तो चाहिए टोटल टाइम. तो therefore what is total time? T is T1 plus T2. T1 कितना? 7.82. T2 कितना? टोटल टाइम कितना? 8.7 सेकेंड्स है. ऐसा आंसर वेरीफाई करिए. सर बराबर है? कैसे? नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा. मैं चला जाऊंगा तो स्क्रीन प्रॉपर हो जाएगा. तो देखिए अभी बोर्ड पर एग्जांपल 3, 4 एक्सरसाइज 1, 2 4 न्यूमेरिकल्स है. 4 न्यूमेरिकल्स में से आपको कोई डाउट? तो પછી ભૂલા 2 बार भूला तो भी आंसर परफेक्ट. एक बार भूला तो कंसेप्ट गया काम से. ના હવે પણ એમાં કેવું થયું, જો મેં આને નેગેટિવ લીધું તો આ નેગેટિવ લીધું, માઇનસ માઇનસ કટ. હવે કોઈ એક કટ કરે, એક ભૂલી જાય સાઈન લેવાનું,
એક જ કન્સિડર કરે તો પછી ટાઈમ માઇનસ થાય, એ પાછું आप छेल्ले मैग्नीट्यूड ले लेना चल। तो ऑफलाइन में से कोई डाउट नहीं, ऑनलाइन वाले बोलो क्या क्या डाउट है, बोलो। સર આ ફર્સ્ટ વાળો ક્વેશ્ચન કરાવો ને પેલો એક્સરસાઇઝ 14.15 તો એમાં પેલો ટ્રાન્સફર જગ ઇઝ સ્ટક એટ વન એન્ડ એટલે શું હોય? मैं डायग्राम में ड्रॉ કર્યું છે જોન ભાઈ, ડાયાગ્રામ માં એ અને બી દેખાયું તને? ડાયાગ્રામ માં એ અને બી દેખાયું આપણને? હા સર સ્ક્રીન તો બ્લર છે કઈ સ્ક્રીન? આ શીતલ મેમ વાળું જે ડિવાઇસ એ સ્ક્રીન હા સ્ક્રીન હવે આવ્યું? એમાં તો પોર્ટ્રેટ જેવું લાગે છે સર તમારે આગળ આવવું પડશે તો ફોકસ આવશે જતું રહેશે. થઈ ગયું ને હવે? જાદુ સર બોલો। સર તો પછી એટલે આ ટ્રાન્સફર જગ તમે બોલ્યું ને તો એ શું હોય, મતલબ ખબર પડી? एक मिनट, ये स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते तो फिर सारे इस कैटेगरी के क्वेश्चंस हो जाते कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 ले लेते, छोटा सा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 स्मॉल क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट पर्सन। लेंथ 12 मीटर है And a mass of 2.10 kg. 2.10 kg है। What should be the tension in the wire so the speed of transverse wave on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius, और which is equal to 343 meters per second. ओके भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ऐसा कंसेप्ट तो एक ही है, हर बार आपको टेंशन दिया जाता था स्पीड फाइंड करते थे, अब उल्टा है स्पीड दे दिया है टेंशन कैलकुलेट करो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? T equal to root of T by T by wavelength. v is equals to root of t by lambda। उसको मॉडिफाई करो तो v equals to root of t into l by m आ जाएगा। लेकिन आपको तो क्या करना है फाइंड? हाँ जी बोलो सर मोबाइल थोड़ो राइट साइड करो ने, अर्धू कपाई करिए જાય. करिए करिए। Squaring both the side. चलिए अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स कर दे हम। Yes, तो sir. v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ t बाय लैम्बडा था, उसकी जगह पे आ जाएगा रूट ऑफ t बाय m बाय l। TL by M. स्क्वायरिंग V square equals to TL by M. बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू tl बाय m आ गया, हमें तो t चाहिए तो दैट T इज is equals mv to V स्क्वायर बाय square l। M. तो t मास कितना 2.10, स्पीड कितना 343 का स्क्वायर अपॉन 12। तो टेंशन का आंसर बताइए। 205 157 ऐसा 20588.57 न्यूटन 5. है ऐसा आंसर, क्रॉस चेक करिए है। तो इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो 2.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 और 4। डन, करो कंप्लीट। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट इस कैटेगरी के। સર બોલો સર પેલો સમજાવો ને ફર્સ્ટ વાળો શું સમજવું ભાઈ? પેલો મતલબ ડાયાગ્રામ નહીં ખબર પડી રહી ટ્રાન્સફર જગ। मैं डायग्राम ड्रॉ કર્યો દેખાયો? સર એમાં નીચે બ્લોક m માસ દેખાયો? હા એ બ્લોક m માસ આવશે એટલે સ્ટ્રિંગ સ્ટ્રેચ થશે એટલે એમાં ટ્રાન્સવર્સ વેવ જનરેટ થશે, બરાબર? સર B2 है ને એવું A to B એટલે જ્યાંથી તારે લો 1 થી 2 કે B થી A, બટ એક એન્ડ થી બીજા એન્ડ પર જવા માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ એ મારે ફાઇન્ડ કરવાનો હતો, બરાબર? હા સર
તો A થી B લીધું મેં, તો A થી B લેવો, તારે B થી A લેવું હોય તો એ B લે, પણ એને ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ જે કરવું છે એ કેટલું કરશે ઇક્વલ ટુ લેન્થ ઓફ વાયર? સર પણ આ ટ્રાન્સવર્સ જર્ક સ્ટ્રક થઈ ગયું એ વાળું, એટલે બે જર્ક આપવું એટલે ક્રેસ્ટ ઓફ ક્રિએટ થાય ને થ્રેડમાં. હા સર, હા હા. એ ક્રેસ્ટ ઓફ આવ્યું એટલે કઈ વેવ થઈ? ટ્રાન્સવર્સ વેવ થઈ ને. અઝ્યુમ કર દે કે તે જર્ક આપ્યો, ક્રેશ ક્રિએટ થયો, હવે ક્રેશ ને A થી B પર જવા માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ, એટલે કે ટ્રાન્સવર્સ વેવ ને જવા માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ? હા સર, હા હા. ટાઈમ રે તો કર દે. હા બોલો. સર આ પહેલા તમને ડાયાગ્રામમાં પેલું એ લખ્યું છે એ ટી છે ને, ટેન્શન છે ને, એ પોઈન્ટ થી એક વેવ જનરેટ થશે ક્રેસ્ટ તરફ અને એને B સુધી પહોંચાડવાનું. તો A થી B જે છે એમાં પહોંચતા એને કેટલો ટાઈમ લાગે, એટલે એ પોઈન્ટ પર એઝ્યુમ કરી લેવાનું કે કોઈ ક્રેસ્ટ કે કોઈ ટ્રફ પાર્ટ હશે. સમજ્યા? રુદ્ર પટેલ.
हाँ हाँ કારણ કે ઉપર જો V00 છે સર બોલો બોલો સર આજે મતલબ પેલો જે સેકન્ડ વાળો ક્વેશ્ચન છે ને એક્સરસાઇઝ 2 વાળો, તો એમાં સ્પ્લેશ જે છે તો એનો ડિસ્ટન્સ અગર કોઈ મતલબ કઈ આપ્યું ના હોય તો પછી જેટલો હાઈટ ટાવરનો ડિસ્ટન્સ એટલો જ ગણો મતલબ થઈ જશે પર્સન ક્યાં છે સર એટ ધ ટોપ ઓફ ટાવર. સ્પ્લેશ સાંભળશે કોણ હા સર સમજી ગયો સર હા બોલો સર આ એક્સરસાઇઝ નો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ને એમાં તમે લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં નીચે શું લખ્યું છે ટાઈમ ટેકન બાય ટ્રાન્સવર્સ વેવ ટુ પછી ટ્રાવેલ લખવાનું એ રહી ગયું કંઈક ફોર્મ લખ્યું છે એટલે હા તો travel from one end to another end ચલો ફર્સ્ટ પાર્ટ થઈ ગયો કમ્પ્લીટ Sir, yes. પતી ગયો ટાઈમ 11:15. Okay, fine. So we wind up over here. ખાલી 2 મિનિટ 10 સેકન્ડ બાકી છે. સમજાય દીધું રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દો આ લખ્યું આવ્યું તો ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ √2 કારણ કે એમ્પ્લિટ્યુડ ક્રેશ નું પોઝિટિવ